Hello students, in today's video we will understand the meaning of dishonor of a bill, and we will also learn that how dishonor of bill is treated at the time when journal entries are being passed in the books of both drawer and drawee. First of all, it is very important to understand the meaning of dishonor of bill. Dishonor, honor nahi karna bill ko. That means at the time when the bill was presented, the time of maturity, this bill was not honored. That means default was made in payment by the drawee. It is a situation when acceptor of the bill, that means the buyer of the bill, does not pay the amount. The holder of the bill may present the bill through a notary public and get the dishonor of the bill noted. So for this, noting charges has to be paid. Why it is important to pay noting charges and why it is important to get the bill which has been dishonored noted in the notary, public notary, is that it acts as an evidence that the drawee has made default in payment. ये एक एविडेंस है एज पर वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कि अगर आपका ड्रॉई आपको मैच्योरिटी डेट पर अमाउंट जो ड्यू है वो नहीं पे करता तो पब्लिक नोटरी में आप जाकर इसे रजिस्टर करवाएंगे, इसे नोट करवाएंगे. नोटिंग इज मेड बाय रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ डिसऑनर कि किस डेट को डिसऑनर हुआ है. रीजन अगर कोई है डिसऑनर का, रीजन कैन बी it may be the drawee has become insolvent, bankrupt, or intentionally the drawee is not paying. It could be any reason. For the dishonor and fee charged by the notary public, that is noting charges, as per verifiable objective concept, as I stated earlier, it is an evidence of dishonor. अगर आप noting करवाते हैं, it will act as an evidence. Now we will start with our first case when the bill is dishonored and the bill is kept with the drawer till maturity date. Now, first of all, let's read the question together. A sold goods to B for rupees 10,000. So first entry in the books of A will be for selling good. Obviously, if the goods are being sold on credit, so the drawee B, the person who's buying goods, is debtor. So we will debit B's account and we will credit sales as sales is revenue, so it will be credited. In the books of B, as goods are being purchased, so purchases are expenses, so purchases account will be debited and A has become a creditor, a liability which will be credited. A drew a bill on B for 3 months, which was accepted by B. So drawing bill, what entry A will pass in his book? It will be bill receivable account debit, because now this debtor B is being converted into another asset, that is bill receivable. As bill receivable is an asset, so bill receivable account will be debited, and B, which was earlier a debtor, now converted into a BR, is credited. Now when this bill will be accepted by B, the purchaser who's buying goods on credit, at that time, as bills payable is a liability, so liability will be credited. Bills payable is a liability, and A, who was a creditor, is now accepting a bill, so his account will be closed, so A's account will be debited. Now what happened on maturity date? When the bill was kept till maturity, the bill was dishonored on due date and noting charges paid by A. Whosoever is a bearer of the bill at the time of maturity, यानी जिसके पास भी ये बिल मेच्योरिटी के टाइम पर होगा, जो ये बिल ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा. यहाँ ये बिल मेच्योरिटी तक ड्रॉर के ही पास है, ए के ही पास है, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ए पे करेगा. अब ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? हम इस एंट्री का तो रिवर्स करेंगे ही, दैट इज अगेन बी विल बिकम डेटर. कीप इट इन माइंड, जब भी डिसऑनर होगा ड्रॉर की बुक में हमेशा जो बायर है वो डेटर बन जाएगा डिसऑनर में. Always, always, in all 4 cases, you will see B will be debited on maturity date when the payment is not received from B. जब payment B से नहीं मिलेगी तो B again debtor बनेगा, but अब bill के amount के साथ
as to keep it as an evidence that the bill was dishonored, noting charges were paid by the drawer, which is neither an expense nor any income for this person A. तो ये ना तो नोटिंग चार्जेस को क्रेडिट कर सकेगा ना डेबिट. इट इज अ मेयर पेमेंट मेड बाय ड्रॉर विच ही कैन क्लेम लेटर फ्रॉम ड्रॉई. सो 10,000 रुपीज का बिल है, 50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस है. टोटल अमाउंट नाउ ड्यू फ्रॉम बी इज 10,050. Now what entry will be passed in the books of B, who is the drawee? ड्रॉई के लिए ये नोटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस की तरह है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी पॉकेट में से पे हो रहे हैं या होंगे, क्योंकि उसने डिफॉल्ट इन पेमेंट किया है. तो अगेन एंट्री तो हम रिवर्स करेंगे ही. इट विल बी बीपी टू ए, बट अब बीपी के साथ बिल्स पेबल के साथ noting charges, which is an expense for the drawee B, will also be debited. So the total amount now again A will become creditor. So the total amount due to A is 10,050. And again in dishonor also entries in the books of drawee, that is B, will remain same. बी की बुक्स में एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, वही परचेज की एंट्री, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री. और जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा. ए जो कि क्रेडिटर है, जो भी ड्रॉर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा. नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉई की बुक्स में डेबिट होंगे. रीजन, नाउ दिस इज एन एक्सपेंस फॉर ड्रॉई, सो ही विल डेबिट noting charges account as well. Coming to next case, when the bill was discounted with bank, as discussed earlier, whenever a person who is a seller has granted credit is in need of fund, और पता है कि ड्रॉई तो अभी पैसे देगा नहीं, जितने भी मंथ्स का पीरियड का आपने बिल बनाया वो उस पीरियड के बाद ही देगा आपको पेमेंट. तो और आप फाइनेंशियल नीड में एज अ ड्रॉर अभी हैं, तो यू कैन गेट इट डिस्काउंटेड विद योर बैंक. लेट अस रीड द केस टुगेदर. केस नंबर 2. A sold goods to B. So entry in the books of A will be B debit, B is the debtor. To sales account, revenue is credited. Purchases are debited in the books of B as it is an expense and liability because goods are being purchased on credit, so A will be credited. The bill was discounted by A at 12% per annum. Per annum मतलब पूरे साल का आपके पास डिस्काउंट गिवन है 12%. आपका बिल ड्रॉन है 3 मंथ्स के लिए. हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं जिस डेट पर बिल ड्रॉ हुआ था तभी डिस्काउंट करवा लिया सेम डेट पर. बट ऐसा भी हो सकता है कि ए ये बिल अपने पास 1 मंथ रखे उसके बाद डिस्काउंट करवाए. तो अब आप डिस्काउंट कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे उस केस में? यू विल चार्ज इट फॉर 2 मंथ्स. तो पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाइल कैलकुलेटिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस. ये भी हो सकता है कि बिल 2 महीने रखने के बाद ड्रॉर जो है वो डिस्काउंट करवाने के लिए जाए. उस केस में आपका जो इंटरेस्ट जो डिस्काउंट है दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ. तो जितने टाइम की सर्विसेज आप अवेल करेंगे उतने टाइम के ही चार्जेस बैंक एज डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो डिडक्ट करेगा. Now we are assuming in this case that the bill was discounted on 3rd only, that means beginning of the month only. So 3 months ka discount will be subtracted for that final amount to be paid to drawer. So amount was 10,000. 12% of this 10,000 is 1,200. 3 months का अगर हम डिस्काउंटिंग चार्जेस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिल आपके पास सिर्फ 10,000 का ही जा रहा है. बट आपके पास बैंक कितना अमाउंट पे कर रहा है? 9,700. 300 बैंक इज कीपिंग एज डिस्काउंटिंग चार्जेस. बट इस सब के बारे में बी को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ. बिल ड्रॉ हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ, ड्रॉर की बुक्स में चेंजेस आए क्योंकि बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, बट देयर विल बी नो एंट्री एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बिकॉज ड्रॉई विल मेक पेमेंट ओनली ऑन ड्यू डेट. मेच्योरिटी डेट पर ही वो पेमेंट करेगा. अब मेच्योरिटी डेट पर क्या हुआ? मेच्योरिटी डेट पर बी इज अनेबल टू मेक पेमेंट. अब हम तो पेमेंट बैंक से ले चुके हैं, पैसे यूज कर चुके हैं, राइट? आपने 3 मंथ्स पहले उसको डिस्काउंट करवा के अमाउंट यूज कर लिया. बी इज मेकिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट.
जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में भी बोला कि डिसऑनर के टाइम पर बी जो कि हमारा ड्रॉई या ऑलवेज डेबिट होगा, वो डेटर बनेगा हमारा फिर से। अब ये बिल ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर किसके पास है? जब इस बिल को प्रेजेंट किया गया बी के सामने, ये बिल था बैंक के पास। आपको मैंने जब ये टॉपिक शुरू करवाया तभी बोला नोटिंग चार्जेस बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे करेगा, द वन हु इज प्रेजेंटिंग दिस बिल इन फ्रंट ऑफ ड्रॉई। तो यहाँ ये बिल किसने प्रेजेंट किया था? बैंक ने। तो बैंक ने ही 50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, क्योंकि जब बैंक मुझे कॉल करके बताएगा देखो आपके ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, तो मैं कहूंगी क्या सबूत है पेमेंट नहीं की? आप गए थे नहीं गए थे, इसका क्या प्रूफ है? उसने बोला देखो ये नोटिंग चार्जेस मैंने पे किए हैं, ये मेरे पास एविडेंस है कि ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की है। तो नाउ आई हैव टू पे टू माय बैंक बिल्स अमाउंट एज वेल एज अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। बैंक विल बिकम creditor and again ड्रॉई will become debtor. Entries in the book of B will remain same. Bills payable account debit because bills payable is no more liabilities. Account को हमें close करना है. It has not been met on due date, maturity date. अब A credit होगा, A will become our liability. Liability with what amount? Amount of bill as well as noting charges. Noting charges account open सिर्फ ड्रॉई की बुक्स में होगा and it is an expense for ड्रॉई, therefore it will be debited. I hope this case is clear. Coming to our next case where this bill is endorsed to creditor of drawer. ड्रॉर ने अपने क्रेडिटर को ये बिल एंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया. Now let us read the question first. A sold goods to B on credit, so entry for sale will be B debit to sales account. In B's book it will be purchases to A. Bill was drawn for 3 months, accepted by B. Now bill draw hoga, BR debit to B. BR is an asset, so debited. We are converting our debtor into another asset, that is BR. Bill is accepted by B, so A debit, because we are closing A's account and we are creating a new liability, that is bills payable account, so it will be credited. Now this bill was endorsed by A to C. A ने बिल किसको दे दिया? C को. B को इस बारे में नहीं पता. B को तो इतना पता है 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करनी है जब ये बिल प्रेजेंट होगा. Now when this bill will be given to C, C debit, creditor decrease हो गए हमारे, and what is given to that creditor? We have given bill receivable. So हमारी asset decrease हो रही है. Asset जब decrease होगी तो क्या होगी? Credit होगी. ड्यू डेट पर अब ये बिल किसके पास है? मैच्योरिटी डेट पर. ये बिल है मैच्योरिटी के टाइम पर सी के पास. तो बी को प्रेजेंट भी किसने किया होगा? सी ने. और अगर बी ने डिफॉल्ट इन पेमेंट की है तो इसके बारे में किसे पहले पता चला? ए से भी पहले सी को पता चला. तो नोटिंग चार्जेस बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे करेगा, तो कौन पे करेगा? सी पे करेगा. एंडोर्सी पे करेगा. Obviously, now as stated earlier, B will again become debtor when the bill is not met on maturity date. So B debit हो जाएगा. और अमाउंट किसको ड्यू है? अब क्रेडिटर को. who is C. बिल का अमाउंट भी देना है, बिल अमाउंट एज वेल एज नोटिंग चार्जेस. जो भी आपके नोटिंग चार्जेस आपके उस बिल के लिए the one who was presenting this bill उसने पे किया है, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का बेयरर था, उसको होल्ड कर रहा था, होल्डर था. अब आप अमाउंट बी से लेंगे टोटल और किसे दे देंगे? सी को. तो क्या एंट्री होगी बी की बुक्स में डिसऑनर की? डिसऑनर के टाइम पर बी एक ईमानदार, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है. वो बिल का अमाउंट भी देगा, नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा. और ये अमाउंट किसको ड्यू है? ए को ड्यू है. अभी पे नहीं किया है. पे नहीं किया तो अभी हम पेमेंट की एंट्री, यहाँ पे कैश लिख ही नहीं सकते. डिफॉल्ट इन पेमेंट है, तो अगेन ए विल बिकम क्रेडिटर. नाउ व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ सी? सी इज द पर्सन हु गॉट दिस बिल फ्रॉम ए. जब ये बिल ए से मिला तब सी ने अपनी बुक्स में एंट्री पास की, बिल रिसीवेबल टू ए.
एसेट आ रही है, एंड ए इज नो मोर डेटर नाउ, सो एज अकाउंट इज क्रेडिटेड। मैच्योरिटी डेट पर क्या हुआ, पेमेंट नहीं मिली, ये भी अपने डेटर को दोबारा से डेटर बनाएगा, भाई अब इससे पैसे लेने हैं, और कितने पैसे लेने हैं, बिल के पैसे भी लेने हैं, और जो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े 50 रुपीज के वो भी लेने हैं। सो एंट्री विल बी ए डेबिट 10,050, टू बिल रिसीवेबल 10,000, टू कैश 50। इसके लिए भी एक मेयर पेमेंट है, ना इनकम है ना एक्सपेंसेस, सो इवन एंडोर्सी विल नॉट ओपन नोटिंग चार्जेस अकाउंट इन हिज बुक्स। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है यहाँ पर कि आप ड्रॉई की बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट ओपन करेंगे, ड्रॉर की बुक में कभी भी नोटिंग चार्जेस अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर नोटिंग चार्जेस बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ने पे किए हैं, उसके लिए हम कैश या बैंक जिस भी मोड से पे किए हैं उसे क्रेडिट करेंगे। Coming to our next case where bill is sent for collection. Sent for collection means drawer अपने बैंक को अपने एजेंट की तरह एक्ट करने का रोल दे रहा है, जहां पर सारे बिल्स आपने अपने बैंक को दे दिए और बोला कि मेरे बिहाफ पर आप मेरे ड्रॉई से इन बिल्स का जो अमाउंट है वो कलेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, अगेन there was default in payment by B. First entry is for sale, B debit to sales account, and entry in the books of B is purchases to A, bill drawn BR debit to B, bill accepted, it is A to BP. When this bill will be sent to bank for collection, a new account will be opened, that is bill sent for collection account debit to bill receivable, as now the bill is going to bank for collection. Again B is unaware what is going on with the holder, क्या कर रहा है वो इस बिल का, वो तो अपना मेच्योरिटी डेट का वेट करेगा। जब मेच्योरिटी डेट आई उस टाइम पे अगेन देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट, बी इज नॉट मेकिंग पेमेंट, सो दिस बिल इज डिसऑनर्ड। लास्ट केस है, लास्ट केस में भी हमने डिसऑनर के टाइम, सॉरी मेच्योरिटी के टाइम जब बिल डिसऑनर हो रहा है हमने बी को डेबिट किया। वी हैव ओपन वन न्यू अकाउंट कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अब इसको क्लोज करने के लिए इसे क्रेडिट किया जाएगा एज स्टेटेड। नाउ दिस अमाउंट हैज टू बी पेड टू बैंक, so we have credited bank account because it is mere payment of noting charges for the drawer. However, it is an expense for drawee, so drawee will debit noting charges account. अगर noting charges holder पे कर रहा है तो वो अपनी बुक में कैश या बैंक जिस मोड से भी पेमेंट कर रहा है उसे क्रेडिट कर देगा। Entries in all four cases in the books of drawee remain same. There are certain important points that we should take care while doing this chapter, and we'll discuss them again just as recapitulation of this chapter. Important points kya hai? It must be kept in mind that discounting charges are calculated on the remaining period of bill, that is from the date of discounting till due date. जैसा कि मैंने आपको बोला, हो सकता है आपने बिल आज ड्रॉ किया, 3 मंथ्स का बिल था और आपने उसको 1 मंथ रखने के बाद जो है वो डिस्काउंट कराया, तो आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस सिर्फ 2 मंथ्स के ही कैलकुलेट होंगे, दे विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर एंटायर 3 मंथ। तो यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से जो भी आपकी ड्यू डेट है आप वहां तक के लिए अपना जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उसे कैलकुलेट करेंगे। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉर अकाउंट इज क्रेडिटर। Why it is credited? Because again the drawer is becoming a creditor, so drawer credit होगा। bills account, bills payable account और noting charges अगर हैं तो वो debit हो जाएंगे। At the time of dishonor in the books of drawer, always keep in mind कि drawee acceptor हमेशा डेबिट होगा। हमने चारों केसेस में देखा जब ड्यू डेट पर आपका बिल डिसऑनर हुआ तो हमने हर बार ड्रॉई, जो कि उस केस में बी था, से डेबिट किया था। नोटिंग चार्जेस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर होल्डर, दैट मींस द वन हु इज होल्डिंग द बिल एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, इट इज अ पेमेंट मेड बाय व्हिच द ड्रॉअर विल इंक्लूड इन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ड्रॉई, और इस अमाउंट को जो उसने मेयर पेमेंट की है उसको बिल के अमाउंट में ऐड करेगा और वो टोटल अमाउंट क्लेम करेगा ड्रॉई से। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी होगा, जैसे फर्स्ट केस में वो
कैपिटल मैच्योरिटी था तो ड्रॉर के पास ही था, तो ड्रॉर ने पे किया। सेकंड केस में बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो उस टाइम पर वो बिल का बेयरर बैंक था, तो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए होंगे। थर्ड केस में एंडोर्सी के पास था, तो नोटिंग चार्जेस एंडोर्सी ने पे किए होंगे। और फोर्थ केस में अगेन इट वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसीलिए हमने उसको टू बैंक करके अमाउंट जो बैंक को ड्यू था वो पे कर दिया। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड while passing journal entries in the books of drawer, drawee or endorsee. I hope the concept of dishonor of bill is clear to all of you. Thank you for watching this video. Stay connected.